Our today's class is for 12th. As you know, we are learning geology. Our today's topic is age of Earth. For finding or determining the age of Earth, there are two types of methods: indirect methods and direct methods. Now, today we will try to understand what are indirect methods. Indirect methods includes various processes for determining the age, like warm clock method, sedimentary method, salinity clock method, etc. Besides, attempts were made to determine the age of Earth from rate of cooling of the Earth and from the evolutionary changes of animals from time to time. So today we will try to understand one of the process, that is Warrow clock method. No doubt different processes provide us the information, or we can get the information regarding determining the age of the earth. Now, today we will try to what is wow clock method. As you know, wow means layers. A wow is a pair or set of laminae layers formed during different seasons within a year. Wow uses the fine sedimentary deposits which the layers or sedimentary material, fine sedimentary material which deposits from time to time, and these deposits are of glacial origin, or they are lacustrine deposits, or they can be in a marine environment. So these are the different environments by which we can use or we can describe the different layers, so that it is easy for us to determine the age as per the Warrow clock method. Wow is usually about 10 mm in thickness, and occasionally it ranges up to 300 millimeters. The annual accumulation of the layers marked by variation in color and gradation in the size of the material which constituting these layers. Geological time ranging from 0 to 10,000 years only could be counted on this wow clock, where wow occurs in Kashmir Himalayas are the examples. So you have seen that the different size or gradation here, grading of particles from bigger ones to smaller, or the other wall or layer which have been in different season accumulate or deposited, that is in winter season fine silt, while as in summer season sand or coarse silt are to be deposited in a walls. So these different walls in different seasons represent the sedimentary deposits of different environment. It can be glacial origin or lacustrine, or it can be from marine environment. So I will try to repeat this simple method, wall clock method. मैंने आपको पहले भी बताया है, एज ऑफ अर्थ डिटरमाइन करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड्स और डायरेक्ट मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनडायरेक्ट मेथड्स में बहुत सारे प्रोसेस शामिल है जिनसे हम ज़मीन की एज मालूम कर सकते हैं, या हमें ज़मीन की एज जानने के बारे में सहूलियत हो जाती है। इसके अलावा वाव क्लॉक, सेडिमेंट्री क्लॉक और सैलिनिटी क्लॉक के अलावा हमारे पास और भी अटेम्प्ट्स है ज़मीन की जो एज है इसको जानने के बारे में। नंबर 1, रेट ऑफ कूलिंग ऑफ द अर्थ,
कि ज़मीन किस रेट से कूल हो रही है, उसके मुताबिक हम इसकी एज मालूम कर सकते हैं। या एवोल्यूशनरी चेंज कि किस तरह से एवोल्यूशन हुआ, किस जानवर का, किस एनिमल का कब एवोल्यूशन हुआ है और कितने पीरियड के बाद इसके जो चेंजेस हो गए हैं एवोल्यूशन होने के बाद, डिफरेंट पीरियड्स। तो इससे भी हमें ज़मीन की जो एज है इसके बारे में मालूमात करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मसला है ये जो हमने पहला प्रोसेस वाव क्लॉक मेथड या मेथड लिया है, जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस तरह हम एज ज़मीन की मालूम कर सकते हैं। वाव एक पेयर है या बताएंगे हम एक सेट है लेयर्स का डिफरेंट सीजन्स में, एक साल के डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर समर में हमें ये फाइन सैंड और कोर्स सिल्ट डिपॉजिट हुआ है, वाइल एज विंटर सीजन में फाइन सिल्ट डिपॉजिट। इसी तरह से हमें पता चलता है कि किस सीजन में कौन सा मटेरियल डिपॉजिट हो गया है, किस तरह एक लेयर सेट बन गया है एक साल में, फिर दूसरे साल में भी इसी तरह। इसके लिए वो तकरीबन 10 mm थिकनेस का होता है, लेकिन ओकेजनली ये रेंज करता है 300 मिलीमीटर तक। जो हमारा लेयर होता है 10 मिलीमीटर से ही की थिकनेस से ये रेंज 300 मिलीमीटर तक रेंज कर सकता है। एनुअल एक्यूमुलेशन जब लेयर्स की करेंगे या जो डिपॉजिशन हो चुकी है, फिर जब मटेरियल एक्यूमुलेट हो चुका है, जमा हो चुका है लेयर्स में, इनको मार्क किस तरह हम करेंगे कि किस, इसी लिहाज से हम मार्क करते हैं कि वेरिएशन कहाँ कहाँ हो चुकी है। चाहे ग्रेडिंग के लिहाज से देखेंगे वेरिएशन हो चुकी है या कलर के लिहाज से। अगर हमें किसी पर्टिकुलर सिल्ट का कलर रेड होगा या ब्राउन होगा, फिर हम दूसरा जो लेयर इसके ऊपर चढ़ा है, अगर ब्लैक सॉइल या ब्लैक सिल्ट का लेयर चढ़ गया है और उसके ऊपर फिर और एक कलर, इस कलर के हिसाब से या मटेरियल के साइज के हिसाब से हम इन लेयर्स को ग्रेडिंग करते हैं। इनको इनकी वेरिएशन को देख के चेंज जहां जहां भी हो गई है, कभी मटेरियल मोटा आता है किसी लेयर में, या कलर डिफरेंट आता है, या साइज एक टाइप का फिर दूसरे लेयर में दूसरे टाइप का साइज। इन लेयर्स को इसी बुनियाद पे हम मार्क करें कि कहां कहां पे वेरिएशन, चाहे कलर में होगे या साइज ग्रेडिंग में, कि मटेरियल किस साइज का होगा, उसके मुताबिक ये लेयर्स बन। जैसे यहाँ पे रेड ऑटम में हुआ 1918 में, अगर फॉर एग्जांपल ले लेंगे। इसी तरह 99 के स्प्रिंग में हमें और एक मटेरियल जैसे ग्रीन टाइप का मटेरियल मिला है, हम सॉरी ब्लू टाइप का। इसी तरह से ब्लैक सॉइल हम बताएंगे। ये जो कलर्स मैंने ओनली फॉर वेरिएशन, मैंने आपको समझने के लिए यहाँ पे रेड, ब्लू और ब्लैक का इस्तेमाल किया है, लेकिन जो ज़मीन के लेयर्स वो मुख्तलिफ कलर के होंगे। जो वहाँ पे सॉइल जिस टाइप का होगा या जो सिल्ट वगैरह कोर्स पार्टिकल्स जिस तरह के, जिस कलर के भी होंगे या जिस साइज के भी होंगे, उसी के मुताबिक वहाँ वेरिएशन लेयर्स में होगी। साइज की बुनियाद पे, इन मटेरियल्स के साइज के बुनियाद पे या कलर के बुनियाद पे वेरिएशन होगी, और उसी के मुताबिक एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल भी होगा। जियोलॉजिकल टाइम की अगर हम बात करेंगे, ये रेंज करता है 0 से लेके 10,000 ईयर्स। ये जो वाव क्लॉक हमारी है, ये मेथड है, इसमें जियोलॉजिकल टाइम के मुताबिक 0 से लेके 10,000 साल तक ये काउंट कर सकता है, ये वाव क्लॉक मेथड। इस मेथड के जरिए हम सिर्फ 10,000 साल तक काउंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल है हमारे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, हमारे कंट्री इंडिया में कश्मीरी हिमालयाज जो है, इनमें हम वाव क्लॉक मेथड का मतलब प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइप का प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं वाव क्लॉक में, जिससे हमें ग्रेडिंग या साइज, कलर वगैरह के मुताबिक वेरिएशन दिखाई देगी और लेयर्स भी इसी के मुताबिक काउंट किए जाएंगे। सो
वाव क्लॉक मेथड अब एक सिंपल मेथड मैंने आपको बताया है, ये सिर्फ ऑन द इसी लिहाज से कि लेयर्स की बुनियाद पे हम काउंट कर सकते हैं एक साल में सीजनली कितने लेयर हुए या दूसरे साल में कितने लेयर हो चुके हैं इसी। लेकिन हम सिर्फ 10,000 साल तक ही ये वाव क्लॉक मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बियॉन्ड 10,000 ईयर्स ये हमारा वाव क्लॉक मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है। सो ये एक इनडायरेक्ट मेथड था जो यूज करके हम एनुअल एक्यूमुलेशन ऑफ लेयर्स ऑफ the earth's material which can be whose variation can be counted or marked on the basis of color and gradation in the size of materials. So this was regarding the first indirect method, that was the wow clock method.